Good morning, dear children. Our lesson number 4, Air of Geography, is going on. We seen about the air कि our air is surrounded by a huge blanket of air called the atmosphere. We learn many things about the atmosphere, how much percentage of different gases are exist in the atmosphere that we learned in the previous video. Today, you have to take out your geography workbook, the page number 24. Today, we are taking the weather and climate condition. In yesterday's video, we learned structure of the atmosphere. Among that, we learn about the troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. That we learn how the layers of the earth are divided. That also we learn. In today's video, we are going to learn about the weather and climatic condition of a particular period or a particular season. So that you have to take out the page number 23. See here, what is the meaning of weather and what is the meaning of the climate. Sometimes we use that both the word in the same meaning, but weather having a different meaning and climate is having a different meaning. In few words, I can say you कि weather is the condition of that particular day, and the climatic condition is for a 3-4 months or more than that we call the climatic condition of a particular period. So let's see. It is going to rain today. Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from annoxious cricket fans speculating the fate of a one day match? Means what happened जनरली जो क्रिकेटर्स के प्रेमी हैं, जो क्रिकेट रेगुलरली वॉच करते हैं, वो लोग ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कभी कभी कि अभी कल क्रिकेट है तो कल वेदर कैसे रहेगा, वेदरिक कंडीशन कैसी रहेंगी, सनी रहेंगी, रेनी रहेंगी, है ना. तो ये वो सोचते हैं, या फिर ट्रेन आएंगी या क्या होगा, ये वो हमेशा सोचते रहते. इफ़ यू इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो and the mind is speaker. Weather is sometimes that fiddles with its control knobs. तो सपोज हमारी बॉडी क्या होती, एक रेडियो की तरह होती और माइंड एक स्पीकर की तरह होता. तो वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विथ इट्स कंट्रोल knobs. तो वेदर हमें अपने नॉब्स के जरिए कंट्रोल में रखा जा सकता था. But weather is in this hour-to-hour, day-to-day condition of the atmosphere. But what is the meaning of weather? Weather change by the hour-to-hour or day-to-day condition of the atmosphere. Means simply we can say weather can be changed anytime or sudden activity. Suppose in daytime, sometimes we found कि in the daytime means when the day began, that time we found a sunny atmosphere. But with the passing of time means after 2-3 hours we found the clouds in the sky, है ना. तो क्या हुआ यहाँ पे, वेदरिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डे हैज़ बीन चेंज. वेदरिक कंडीशन क्या होती है, चेंज होती है in a hour also, in a few minutes also, or in 1 or 2 day. Got it? That we call the weather condition. A hot or humid weather may be one irritable. A pleasant breezy weather may be one cheerful and even plan for an outing. Means listen, in a summer season we generally found the hot climate. Okay, because what is the meaning of climate I will explain you, but you listen first कि hot और humid weather. जब weather और climate hot and humid रहता है तो it is very scorching us, it is very irritable to us. But the weather is pleasant, the weather is cheerful and cool,
तो इन दैट वेदर वी वांट टू मेक अ प्लान फॉर द आउटिंग्स, हमें आउटिंग जाना पसंद होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ओके, तो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. मीन्स वेदर कभी भी चेंज होता है. आज का वेदर जो है वो कल वैसे ही रहेगा ये हम नहीं बता सकते. However, the average weather condition of a place for a longer period of a time represent the climate of a place. तो climate means क्या होता है, जो 2-3 months तक एक एवरेज वेदर कंडीशन जो रहती है, कोई भी चीज़ का हम एवरेज निकालते हैं, वैसी ही जो एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे कि हॉट मीन्स समर डेज़ का हमने एवरेज एक निकाला है या विंटर डेज़ का एवरेज निकाला है, तो 2-3 months और सेम टाइप का वेदर आपको फाउंड होता है. तो उसको हम जो ज़्यादा टाइम तक टिकता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रहता है, उसको हम क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर पीरियड बोलते हैं. तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव अ डेली वेदर फोरकास्ट. और यू नो कि जो वेदर फोरकास्ट रहता है वो एट ए टाइम हमें सभी डे का नहीं मिलता है. वेदर फोरकास्ट जो होता है वो डे टू डे वाइज डिफरेंट होता है. जैसे कि आज का वेदर फोरकास्ट और कल के वेदर से क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. गॉट इट. मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन exist for a 2-3 can be exist for 2-3 months. Okay, but the weatheric condition can be changed with a hour, with a day, or with a few minutes also. Got it. Then we are moving toward the temperature. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. जो हम लोग टेम्परेचर को फील करते हैं, वो टेम्परेचर क्या होता है, जो रोज़ हम टेम्परेचर फील करते हैं, इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हम फील करते हैं. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन द टेम्परेचर. मीन्स सपोज वी फाउंड द हॉट टेम्परेचर और सपोज वी फाउंड द कोल्ड टेम्परेचर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ द एयर. The temperature of the atmosphere change not only between the day and night but also from season to season. Summers are hotter than the winter. You know कि in summer, during the summer season we found a hot temperature and in during the winter season we found a cold temperature. It means temperature can be changed uh, temperature can be changed according to the seasons. Then an important factor that influences that distribution of the temperature is isolation or insolation. Means ये जो important factors क्या है, तो insolation है. which insolation क्या करता है, टेम्परेचर को प्रभावित करता है. इंसुलेशन की वजह से ही टेम्परेचर चेंज होता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसुलेशन. इंसुलेशन इज मीन्स द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसिपेटेड बाय द अर्थ. जो अर्थ पे सोलर एनर्जी आती है सन से, उसको बोलते हैं इंसुलेशन. द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर्स टूवर्ड्स द पोल. Therefore, the temperature decreases in the same manner. Now, do you understand why the poles are covered with the snow? If the earth temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. See, first we are going to see here the insolation. Suppose this is earth, and on the earth I'm here making the small sun. See, on the earth the sun rays are come in that manner. तो that sun rays we called insolation. क्या बोलते हैं इनको, insolation. ओके, ये हो गया इंसोलेशन.
देन ये जो सन रेज है, दिस सन रेज falling down on the earth in the on that equatorial portion. It is the equator part of the earth. This is the tropic of Cancer, tropic of Capricorn, and these both are the polar region. So on the equator the sun rays are fall डायरेक्टली, यहाँ पे सनरेज जो है वो डायरेक्टली फॉल डाउन होते हैं। और हम लोग देखते हैं पोलर रीजन की तरफ जो सनरेज है वो कैसे जाते हैं, वर्टिकली जाते हैं। इस वजह से जो सनरेज इस पोर्शन में आते हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसे रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर एटमॉस्फेयर यहाँ का हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, बिकॉज सनरेज जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली पहुँचते हैं। बट इन द पोलर रीजन वी फाउंड द कोल्ड एटमॉस्फेयर, बिकॉज सनरेज जो है वो यहाँ पे वर्टिकली फॉल डाउन होते हैं। देन temperature decreases in the same manner. Now do you understand why the poles are covered with the snow? इसलिए जो पोल्स है यहाँ पे वर्टिकली सनराइज जाते हैं, इसलिए वो क्या है, स्नो से कवर्ड रहते हैं। इफ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हॉट, अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो यहाँ पे कुछ जिस क्रॉप्स को वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए, कूल एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वो प्लांट्स जो वार्म एटमॉस्फेयर पे ग्रो नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ द विलेज। जो सिटी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है rather than the village. The concrete and the metals in buildings and asphalt of the roads get heated up during the day. Now you see student here, जो buildings के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है दैट आयरन यूज़ होते हैं, और जो भी ऐसा मटेरियल यूज़ होता है मिनरल, तो वो मटेरियल क्या होता है, डे टाइम में हॉट हो जाता है और नाइट टाइम में वो जो मीन्स नाइट टाइम में वो अपनी जो हॉटनेस है उसको रिलीज़ करता है। इसलिए नाइट टाइम पे भी टेम्परेचर बढ़ा रहता है रैदर दैन द विलेज टेम्परेचर। सिटी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट एंड ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। मीन्स जो क्राउडेड और थिक सिटीज़ होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर वार्म टेम्परेचर को क्रिएट करती है। देन व्हाट इज़ द air pressure? You will be surprised to know that air above us pressure. You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. Means अर्थ पे हम रहते हैं, अर्थ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एयर फाउंड होती है और इस एयर का हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। ये हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करती है, अर्थ पे चलने फिरने का और अर्थ पे रहने का एक मीन्स प्रेशर हम पे बनाए रखती है। तो दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेसेस अस, मीन्स एयर हमें प्रेस करती है फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर। और हमारे बॉडी में एक तरह से बहुत बड़ा प्रेशर होता है जो कि हमें फील नहीं होता, दिखाई नहीं देता, बट एयर हमें यहाँ पे अर्थ पे प्रेशर में रखने का काम करती है। तो एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सटेंड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। As we go up the layers of the atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at the sea level and decreases with the height. Means air pressure जो है वो exerts करती है by the weight of the air on the earth surface.
एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर पे जाते हैं तो प्रेशर फॉल्स रैपिडली। तो प्रेशर क्या होता है, डाउन डाउन होते जाता है। जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डाउन होते जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। सी लेवल पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और डिक्रीज कम होता है विद द हाइट। और जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाते हैं, कोई माउंटेन पे जाते हैं या कहीं और ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम होते जाता है। हॉरिजॉन्टली द distribution of the air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. Means horizontally means which line, that line we call the horizontally. Okay, तो horizontally जो है distribution of the air pressure is influenced by the temperature of the air at a given place. In areas where the temperature is high and air gets heated and dries, this create a low pressure area. जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे एयर जो है वो हीटेड होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे एयर जो है वो हीट होती है एंड राइजेस होती है और ऊपर जाती है। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काई एंड द वेट वेदर। लो प्रेशर एरिया में हवा का प्रेशर जहाँ पे लो होता है वहाँ पे हमें जनरली क्लाउडी और स्काई वेदर फाउंड होता है। इन एरियाज हैविंग अ लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। जहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, वहाँ की एयर कैसी रहती है, कोल्ड रहती है। इट इज़ देयर फॉर हेवी 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 एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। जो हेवी एयर रहती है वो सिंक डाउन होती है एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएट विद द क्लियर एंड सनी क्लाइज। जो हाई प्रेशर एरिया जो है वो कौन सा पाया जाता है, sunny and sky. Then the air always move from high pressure areas to a low pressure area. तो यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना है, जो हॉट ह्यूमिड एरिया होता है, हॉट ह्यूमिड एरिया से एयर मूव ऑन करती है टू द जो लो प्रेशर एरिया कौन सा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जहाँ पे कोल्ड रीजन होता है। तो हॉट रीजन से एरिया हमेशा हॉट एयर हॉट रीजन से एयर हमेशा कोल्ड रीजन तक मूव डाउन करती है। देन द विंड, द मोमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड द विंड। जो मूवमेंट होती है एयर की वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करती है, मूविंग करती है। यू कैन सी द विंड एट अ वर्क इज एज इट ब्लो ड्राई लीव्स down pavements of the uprooted trees during a storm. Means जो एयर प्रेशर जो है जब वो बहुत ज़्यादा होता है टू अ लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड अ विंड। मीन्स द मोमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया से जो एयर मूव होती है टू द लो प्रेशर एरिया उसको बोलते हैं विंड का मूविंग होना। तो यू कैन सी द विंड एट अ वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट्स और अफ्रूट्स द ट्री ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब स्टॉर्म आता है तो एयर क्या करती है, बहुत ज़ोर से बहती है और समटाइम्स ट्री को भी अपरूट कर देती है, उखाड़ के फेंक देती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। जब वो एयर साइलेंटली मूव करती है तो अपने साथ क्या लेके जाती है, जो फाइन डस्ट होती है। फाइन डस्ट मीन्स हमें फाउंड नहीं होती है जनरली, तो जो फाइन डस्ट मीन्स जो पार्टिकल्स रहते हैं स्मॉल स्मॉल एयर में, उसको मूव करती है अपने साथ, साइलेंटली लेके जाती है। एट अ टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। और जब एयर का जो प्रेशर रहता है वो सपोज साउथ की तरफ से हमारी तरफ आ रहा है, मीन्स वी आर मूविंग टू द साउथ डायरेक्शन और एयर भी कहाँ से आ रही है, साउथ डायरेक्शन। तो हमें एयर को फेस करना कभी कभी मुश्किल होता है। अगर हम भी साउथ की तरफ जा रहे हैं और एयर भी साउथ की तरफ से आ रही है तो दिस टाइम क्या होता है, हमें एयर को फेस करना मुश्किल होता है। थिंक ऑफ सम ऑफ द एग्जाम्पल व्हेन
one second. You must have to experience it. Is not easy to hold an umbrella on the windy day. सपोज देखो बारिश के साथ एयर भी आ रही है, बहुत जम के एयर आ रही है और आप एयर के उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो, तो क्या हो जाता है अम्ब्रेला भी ऐसा आपको आपका उड़ने लगता है ना, वो उल्टा हो जाता है. तो थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएट. और आपने भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को फेस किया होगा ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो नाउ द प्रॉब्लम्स फॉर ए विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स. तो विंड कैसे क्या थ्री टाइप्स में डिवाइड होती है, विंड क्या होती है, अगेन वी विल गोइंग टू सी फ्रॉम द विंड इन tomorrow's lecture. Got it? So till air pressure you all has I think you all has understand what is the meaning of the weather, means what is the difference between the weather and climate. Then we learn about the temperature condition during the daytime, during the night time. Then we see the temperature condition of that particular area कैसी रहती है, सनराइज क्या इफेक्ट करता है, इंसोलेशन क्या होता है, दैट वी लर्न इन टूडेज वीडियो. गॉट इट? बट फर्स्ट यू सी व्हाट इज गिवन इन डू यू नो. You will be surprised to know that the earth receive only 1 into 0 0 0 0. देखो ये जो 0 0 दिए हैं ये फॉरेन कंट्रीज में जैसे लगाते हैं उस टाइप में यहाँ पे दिए हैं. पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी, इतना मीन्स पार्ट है और जो है इतना पार्ट्स का सन एनर्जी रिसीव करता है वन डे में. Then do you know the standard unit of the measuring temperature is a degree Celsius. It was invented by the Anders Celsius. एंडर सेल्सियस ने डिग्री सेल्सियस को इन्वेंट किया है. टेम्परेचर इस डिग्री सेल्सियस में मीन्स टेम्परेचर जो है हमेशा डिग्री में मापा जाता है और इसको इन्वेंट किया गया है बाय द एंडर सेल्सियस. ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजर एट द 0 सेल्सियस, जो वाटर है वो फ्रीजिंग होता है 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर फ्रीजिंग होता है एंड बॉयल्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस में. और ये किसने ढूंढ के निकाला है, हु सर्च इट, एंडर सेल्सियस. ओके. देन डू यू नो ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हेंस नो एयर प्रेशर. मून पे कोई भी एयर नहीं है और इसलिए वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं है कि जिससे आप वहाँ पे चल सको. बट अर्थ पे क्या होता है, एयर प्रेशर है, इस वजह से आप अर्थ पे चल सकते हो क्योंकि एयर ने आपको अर्थ पे प्रेस करके रखा है. बट ऑन द मून देयर इज नो एटमॉस्फेयर सो दैट एयर प्रेशर इज ऑल्सो नॉट फाउंड एयर, सो दैट मून पे हम वॉकिंग नहीं कर पाते हैं. देन astronauts have to wear the special protective space suits fill of air when they go to the moon. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts will make the blood vessels burst. The astronauts will bleed. Means अगर astronauts एक कोट नहीं वेयर करके जाते हैं जो एयर प्रेशर से बना हुआ होता है कि वो वहाँ पे जाके वहाँ पे वॉक कर सके. अगर वो सूट नहीं, एयर प्रेशर वाला सूट नहीं पहन के जाते तो वहाँ पे वॉक नहीं कर सकेंगे और उनकी जो नर्व्स होंगी वो भी ब्रस्ट हो जाएंगी और ब्लड बहने लगेगा. ओके, तो दैट वी विल गोइंग टू सी इन टुमारोज वीडियो द नेक्स्ट पार्ट. ओके, गुड बाय.